Hello everybody, greetings from Edu4 Academy, Chandigarh. Today we are going to discuss the subjective papers of your mains that have already been there in your previous question papers. The topic that we are going to discuss today is about the environmental questions that you need to put a lot of effort in. Coastal sand mining poses one of the biggest threats to our environment. This was the question that you got in 2019. The question was, coastal sand mining poses one of the biggest threats to our environment, and analyze the effect of sand mining along the Indian coasts, citing examples. So what was expected from the children, what was expected from the students who needed to write the answers accordingly. Many of the aspirants were quite confused because once the environmental part comes, normally the children make a lot of you can say choices regarding if you need to write about the environment or if you need to write about the coastal mining only, where can you gain marks and where are the chances of losing marks. So the thing is, in this particular question we can see that we need to discuss about the coastal land mining. Now when you talk about mining is to remove all that sand for one's use and which creates a lot of soil erosion. See, man has become very selfish for his needs, but he has continuously been depleting these resources for his own use. If I talk about the various natural resources, sand is one of them. Okay, nature has provided us sand and we are using the sand. Good, we need to use it for various purposes, but that doesn't mean you continuously go on depleting the resources or you continuously create erosion conditions which will not only affect the wildlife and it is also going to pose a threat to our lives also. So now beginning from the real topic, that what actually coastal sand mining is. Whenever we discuss about coastal sand mining, what does it lead to? Coastal sand mining along the terrains and the coasts lead to soil erosion. How soil erosion? Do you know that all the sand and all that soil etc. are bound together, the particles are bound together thanks to the vegetation and the flora which is creating this kind of binding capacity of the soil and keeping the soil intact, you can say. In this case we can see if you keep on mining them or if you keep on going along with the deforestation area, क्योंकि अगर मैंने किसी जगह से सैंड निकालना है तो सबसे पहले I will raise off the ground, मैं पहले उसमें से plants निकालूंगी obviously, right? So when you create this kind of deforestation and then you start mining the sand, you create a threat for the plant life as well. In this case, soil erosion is the major problem that we are going to face. In case of soil erosion, we find as in Karnataka is the best example. If we talk about Karnataka, Karnataka has faced the maximum amount of soil erosion till date. इस एरिया में कोस्टल एरिया के साथ लगा हुआ ये कंट्री, कोस्टल एरिया में लगा हुआ कर्नाटका इतना ज़्यादा सॉइल इरोजन को फेस कर चुका है कि ये एक थ्रेट एरिया बन चुका है जहाँ पर अगर आप और भी थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन करोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर लेंगे हम, जो कि वहाँ का रिवर मैनेजमेंट्स हो गए, सी कोस्ट मैनेजमेंट्स हो गए और वहाँ के जो एनिमल्स हो गए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाएगी। वो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस विल अकर. Be very attentive in this case. Karnataka is one of the examples which has forced everybody to take this matter seriously. Okay, what else does the government, what is government doing? The government needs to, not only needs to, it is already spending crores of rupees in order to get rid of the problem in Karnataka. When we talk about soil erosion, we never forget to talk about the deepening of rivers. अगर आप किसी एरिया में से बार बार सैंड को निकालते जाओगे तो आपके जो रिवर्स हैं वो डीपनिंग हो जाएंगे. आप वो डीपनिंग ऑफ रिवर्स कैसे होंगे इसको जरा देखिए. जितना आप शोर्स में से या रिवर बैंक में से सैंड निकालते जाओगे पानी जो है वो इधर उधर बिखरता जाएगा, वो डीपर लेयर्स में चला जाएगा. ऑब्वियसली व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एरिया द वाटर लेवल विल गो डाउन. बट यहाँ पर एक हम दो चीज़ों को एक साथ फेस कर रहे हैं.
नंबर फर्स्ट, हाउ डज द वाटर लेवल गो डाउन? व्हेन द माउथ ऑफ द रिवर बिकम्स वेरी बिग, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ माउथ्स विल लीड टू डीपनिंग ऑफ रिवर्स। तो एक तो वाइडनिंग हो गया, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ रिवर माउथ्स, this is one of the headings that need to be written in your answers, ठीक है ना। इन्हीं हेडिंग्स के अंडर आप एक्सप्लेन करोगे, पहला सॉइल इरोजन, दूसरा डीपनिंग ऑफ रिवर्स ड्यू टू विच द रिवर बेड यू कैन से इट गोज डाउन एंड इट ऑल्सो लीड्स टू habitat loss, but we will be discussing that how does habitat loss in this case occur. Then we also talk about saline water intrusion. Who's an intruder? Intruder किसे कहते हैं? घुसपैठी। और इस केस में घुसपैठी कौन है? The sea water salinity intrudes into rivers, तो इसे कहते हैं इंट्रूजन ऑफ saline water in rivers. अब आप सोचकर बताइए, अगर आप माइनिंग करोगे तो यू विल क्रिएट अ पाथवे फॉर द salinity ऑफ द रिवर्स थ्रू योर वाटर टेबल ऑब्वियसली टू एंटर द रिवर्स। अब इस केस में क्या होगा? पीएच वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होगी। जो रिवर वाटर, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिवर वाटर में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? ऐसे केस में आप हैबिटेट लॉस भी कराओगे, आप एनवायरनमेंट लॉस भी कराओगे, आप यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना दोनों को डिस्टर्ब करोगे, क्योंकि आप एक फ्रेश वाटर को सैलाइन वाटर या ओशियानिक वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कंसिडर वेरी सीरियसली कि जितनी ज़्यादा सैंड माइनिंग आप करते जाओगे उतना ही ये सैलिनिटी जो है ये इंट्रूड कर जाएगा रिवर्स में, और हमारे लिए जो लेवल है पीएच का वो चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। नॉट टू फॉरगेट द वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस ऑल्सो। अ वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस इन वाइल्ड लाइफ, डिस्टर्बेंस इन वाइल्ड लाइफ, बड़े अटेंटिवली सुनना ये वाले टॉपिक को, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड बाय एग्जामिनर कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो डिस्टर्बेंस इन वाइल्ड लाइफ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप किसका दोगे? अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो आपके दिमाग में वही शेर, चीते, जानवर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, डिफॉरेस्टेशन तो पढ़ नहीं रहे, सैंड माइनिंग पढ़ रहे हैं। तो एग्जामिनर उसी बच्चे को मार्क्स देगा जिसने अपने आंसर में सैंड से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है उसका एग्जाम्पल साइट करना होगा। The best example here that you need to put is the example of the turtles, the Oliver Ridley. Oliver Ridley ये किसी इंसान का नाम नहीं है, it is a type of turtle जो सैंड में अपने नेस्ट, इनकी जो नेस्टिंग है वो सैंड में, उधर ट्री में तो होगा नहीं। तो ये टर्टल्स क्या करते हैं, ये शोर पर आ जाते हैं या रिवर बैंक पर आ जाते हैं और वहाँ पर ये अपने छोटे छोटे अपने सैंड नेस्ट्स बना देते हैं। अब सैंड नेस्ट कैसे होगा? ये थोड़ा सा एरिया उसे डिग करके वहाँ पर अपने अंडे दे देते हैं। दैट मीन्स दे undergo that process of their incubation, they undergo the process of the egg laying. After that egg laying they cover it with sand. ये भी लिखना है अपने एग्जाम में कि after laying eggs they cover it with sand, then the eggs get incubated with the help of sunlight, and after hatching the turtles slowly move towards the water bodies. If you are continuously into the sand mining process, what are you doing? You're disturbing द वाइल्ड लाइफ। आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उनकी हैचिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उनको रेज ऑफ कर रहे हो, आप उनके हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनका राइज ठीक होना चाहिए। कैसे होगा जब हमने उनके हाउसेस ही डिस्ट्रॉय कर दिए? तो ये जो सैंड माइनिंग है इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही करना चाहिए, नहीं तो ये आपके एनिमल लाइफ को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे। तो Oliver Ridley is the best example which you can cite. These are those turtles which dig and lay eggs in the sand, and after covering those particular eggs they hatch, and I expect that you should write this answer. Like after the hatching process begins they slowly move towards the shore. So I would really like that you should note these particular things so that your answers should be up to the mark. After the disturbance of wildlife, we also discuss about turbidity of water. Water turbidity नहीं लिखा, तो this will be one of the places where the examiner is going to deduct your marks. So now let's talk about turbidity of water. तो ये आपने 4 पॉइंट्स आपके ये हो गए। 5वां पॉइंट जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है आपके आंसर शीट में वो है turbidity of water. अब ये turbidity का मतलब सुनेंगे क्या होता है।
टर्बिडिटी मीन्स जब पानी के अंदर इतना ज़्यादा यू कैन से स्लाइम आ जाता है, ठीक है, या अंदर किसी वजह से जितना भी रेत है जो आप माइनिंग कर रहे हो, सैंड माइनिंग कर रहे हो, उसके वजह से काफ़ी सारा जो रेजिड्यू है वो पानी की तरफ फ्लो कर जाता है। इसमें डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स हो सकते हैं। वो डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पानी के ऊपर जाकर उसको एक लेयर चढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है ना। ये एल्गल लेयर हो सकती है, ये फंगल लेयर हो सकती है। लेयर किसी भी चीज़ की हो, मुसीबत सेम ही है, और उस मुसीबत का नाम है यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है और ये टर्बिडिटी से कैसे बढ़ जाता है? जितना स्लाइमी आपका वाटर होता जाएगा उतना ही उसको पॉल्यूटेड बॉडी माना जाएगा। ये रहा आपका वाटर बॉडी, और ये इसके ऊपर जो टर्बिड लेयर चढ़ जाएगी एल्गी की, सनलाइट विल नॉट बी एबल टू एंटर एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। ड्यू टू दिस the plant, that is the flora, and the animals, that is the fauna, would get badly affected. How? Because of oxygen dissolved in water released by photosynthesis of these plants, the animals are able to survive. Now you can imagine if this algal layer is created over this due to pollution, due to mining, due to turbidity of water, the algal layer will hamper the amount of sunlight entering the water body. The plants will not photosynthesize. The plants will die. As a result, the oxygen deficit will occur here. The deficit of oxygen would occur and the animals would also die. In this case, the death of plants and animals would lead to another process which is required, known as decomposition. Everybody knows that for decomposition process ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब इनके सड़ने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बचा नहीं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, और ये जितना भी ऑक्सीजन है जो बच गया है ऑलरेडी, जो डेफिसिट में है, वो डिकम्पोजिशन करवाने चला गया, तो जो बचे हुए जिंदा प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर भी ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। ऑक्सीजन के इस खतरनाक डेफिशिएंसी की वजह से loss of flora and fauna in this water will occur and the sea or that particular river will become dead. और ये एक छोटा खतरा नहीं है। We are heading towards a big problem. We are heading towards a big problem and this is what is actually occurring in the water bodies. Turbidity is something this which is caused. क्या और कोई प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं? वो है कि aquatic life अगर ruin हो जाएगी तो आप किस तरह के इकोसिस्टम को इमेजिन कर सकते हो? हम लोग आने वाले टाइम में किस किस्म के एनवायरनमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो जाएंगे? और लास्ट टॉपिक जो एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जामिनर से कि ये 6 पॉइंट्स आप लोगों ने जो बनाने, उसमें 6th पॉइंट होगा कि सैंड माइनिंग, कोस्टल सैंड माइनिंग विल मेक द एरिया प्रोन टू फ्लडिंग। अब आप कहोगे थोड़ी देर पहले तो हम बोल रहे थे डीपनिंग ऑफ रिवर्स हुआ, तो ये प्रोन टू फ्लडिंग कैसे होगा? इसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सैंड माइनिंग करोगे ऑब्वियसली पिट्स बनेंगे, जैसे जैसे पिट्स बनेंगे तो लार्जर वाटर बॉडीज से, लार्जर वाटर बॉडीज यहाँ से आने वाला जो वाटर है, यहाँ आपने सैंड माइनिंग की, इसके अंदर ये वाटर चला जाएगा। मतलब कि दिस पर्टिकुलर स्टेप विल अकर आफ्टर द वाइडनिंग ऑफ द रिवर माउथ्स। वंस द रिवर माउथ्स आर वाइडन्ड, दिस इज समथिंग, ये नहीं कि चैलेंज के पीछे चैलेंज आ रहा है। पहले रिवर माउथ वाइडन हो गया, लेवल नीचे गया, फिर वो जो वाइड रिवर माउथ्स हो गए उसके अंदर वाटर, लार्ज वाटर बॉडीज विल कम टुवर्ड्स दी स्मॉलर वाटर बॉडीज लीडिंग टू अ राइज इन द लेवल। मतलब पहले आपका डीप हो गया लेवल, डीप सी, डीप रिवर लेवल चला गया, वाटर लेवल जो नीचे गया, और सेकंड केस में वो ऊपर चला गया। अब इस केस में ये एक्सेस वाटर विल लीड टू फ्लड्स, और फ्लड्स वाटर लॉगिंग होगी, वाटर लॉगिंग होगी तो आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे, आपके एनिमल्स डिस्ट्रॉय होंगे, यहाँ का जो सैंड बचा हुआ है वो पतला पड़ जाएगा, वो लूजन हो जाएगा, और वो भी बह बह कर इरोड होकर वाटर के अंदर आएगा। सी बेड लेवल राइजेस, hence water will come up and cause flooding. This is something that your examiner expects that needed to be in this particular answer. The role of government is very important. इंडिया के गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसा किया है जहाँ पर सैंड माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। बट द थिंग इज बॉयज एंड गर्ल्स, अटेंटिव रहना। आपके आंसर में ये लाइन जरूर हो कि though the government is taking necessary steps
to combat this particular problem of sand mining. क्या इसका इलाज यही है कि आप सैंड माइनिंग करना ही बंद कर दो? नो, इसका इलाज ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ माइनिंग होनी चाहिए, एक चेक लगाया जाए कि इन एरियाज में माइनिंग नहीं करना, ये प्रोन टू फ्लडिंग है, यहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, और इन पर्टिकुलर एरिया से माइनिंग की जा सकती है, क्योंकि जीना हमने भी है, रहना हमने भी है, लेकिन कैसे रहना है? दूसरे रिसोर्सेज को खराब करके नहीं। आपने ये चीज़ डालना है ज़रूर अपने आंसर में कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर द क्वांटिटी, द सस्टेनेबल क्वांटिटी ऑफ दिस माइनिंग, कि आप कितना माइनिंग ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम झेल सकता है या ये पर्टिकुलर रिवर बॉडी या वाटर बॉडी झेल सकता है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर टू राइट इन योर आंसर्स। द बिगेस्ट achievement of you is that if you are attempting this answer, make points, write 6 points, explain them all together, put examples, and here you get full marks in your answer. Thank you so much for this particular patience that you showed, and I expect that this lecture would have been advantageous for you. Thank you so much. Thank you. Have a nice day.